So hello guys, I welcome you all on today's video learning session. This is once again your educator Anup Kumar Singh, and I welcome you once again in your very own channel, that is Youth and Truth Classes. This is a kind of a small information about me, UPSC and the PCS aspirant, clear pre in 2017 and WBCS in 2017 as well. If you have any suggestions, query, questions, you can directly mail me on my personal mail, or you can WhatsApp on my WhatsApp number. So without using a single second, let's start today's session. So now, today we are going to start our NCERT class 9 geography India first lesson, India size and location. Right, so I am 100% sure that you might have learned a lot about the India. Right, आपको इंडिया के बारे में बहुत चीज़ें पता होंगी, बहुत चीज़ आप जानते होंगे. And you know that and you can see that I have I have put here a map over here. So you are also familiar with this map, और आपको इंडिया के लोकेशंस पढ़ते आ रहे हैं सिंस क्लास 5 6. बट टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द जोग्राफिकल लोकेशन, द जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस एंड इट्स जोग्राफिकल बाउंड्री इन अ very detailed way. I will put the points, I will mention the points which is also not given in the class 9 textbook, because we are preparing for the UPS and and the other examination. So I request the class 9 students, 10 student, those and the other students as well, those who are preparing, please take a screenshot if you are watching in the mobile, या फिर आप उसको notes बनाते चलिएगा, और जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है उसे भी नोट डाउन करते चलिएगा. चलिए अब कुछ एक थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं इंडिया के बारे में. that the India is one of the ancient civilization. It has developed in agriculture, industry, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे कि आप सबको पता है, भारत की बहुत प्राचीन सभ्यता रही है, बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है. एंड विद इन द लास्ट सम डिकेड्स इंडिया डेवलप्ड, इमर्ज्ड एज अ a power sector, और यू कैन से द वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, या फिर पूरी और आर्थिक डेवलपमेंट की बात करें. इंडिया हैज़ प्रूवन एंड इंडिया हैज़ डेवलप्ड. नाउ व्हाई आई हैव पुट दिस मैप एंड व्हाई आई हैव यूज दिस रेडिंग. ये रेडिंग से मैंने क्या दर्शाने की कोशिश की है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. टिल देन आप बस यू जस्ट इस लर्न दिस, और दिमाग में इसे रख लीजिए, ये जो मैथमेटिकल वैल्यूज हैं. राइट, तो आगे देखते हैं. Now, location. India lies completely in the northern hemisphere with a latitudinal extent of 8 degree 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north, and between longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. Right. So my dear friends, if you don't know what are latitudes, what are longitudes, what does latitude give us, what is the importance of the longitude, so I request you, abhi is videos ko pause karo and go back to the previous video, because until and unless you will not know about these geographical entities, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. राइट, एंड उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, अगेन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ द सोर्स, हमारा एनसीईआरटी रहा है उसको समझाने के लिए, तो आप उसे देख लीजिएगा. अब ये जो मैंने लाइन पढ़ा, जो आप पढ़ते आ रहे हो, दैट इंडिया लाइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. राइट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, एंड बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. तो अब देखते हैं इसमें क्या था. यानी ये देखो, ये जो मैप है, फ्रॉम हियर फ्रॉम नॉर्थ, राइट, दिस इज नॉर्थ. इफ यू डोंट नो, मैं अक्सर बना देता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए, दैट दिस इज द डायरेक्शन चार्ट. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, एंड दिस इज द ईस्ट. राइट, सो यू कैन सी दैट द इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, एंड सिमिलरली इन द ईस्टर्न साइड में 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. These geographical entities, these mathematical values, you have to understand, you have to learn, or you have to memorize, whatever आपको ये समझना है, because हमारा भारत का लोकेशन एग्जैक्ट इसी geographical entities में आता है. लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या है, parallels of latitudes क्या, I have mentioned all those, so please go on the first video and learn it. Right, आपको समझ में आ जाएगा. तो ये हमारे जोग्राफिकल लोकेशन है सब कुछ. राइट, अब यहाँ देखो, जस्ट आई हैव यूज दिस दीज आर नॉट द पॉइंट्स एंड दीज आर नॉट द एपोस्ट्रोफी कॉमा, दीज आर द एब्रिविएशन, दीज आर द नॉट एब्रिविएशन, दीज आर द इनिशियल फॉर्म्स और द वैल्यू बाई विच वी डिनोट्स. इट डिनोट्स इन द डिग्रीज, और मिनट को हम लोग कॉमा में डिनोट करते हैं, और डिग्री को ऊपर जीरो लेके. अब ये थिंग आपको पता होगा. आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू.
अब आगे देखते हैं द मेन लैंड. सो वेन एवर आई यूज द मेन लैंड इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड पोर्शन. हम लोग सिर्फ भारत की जमीनी भाग की बात कर रहे हैं. बट इफ आई से that the total land, if I say that what is the total extent, what is the total और द और द होल एक्सटेंट्स ऑफ द इंडिया, उस वक्त आपको इंडिया का सारा एक्सटेंट्स बोलना होगा, चाहे वो टेरिटोरियल लिमिट हो या फिर उसका साउदर्न पेनिनसुलर पार्ट हो. बट वेन एवर वी सो से द मेन लैंड वी ओनली यूज टू मेमोराइज दिस थिंग्स और वी ओनली यूज टू अंडरस्टैंड these things that the mainland of India extends north from Kashmir to Kanyakumari in the south and Arunachal Pradesh in the east and Gujarat in the west. यानी आप सुनते आए होंगे, right? Sometimes that's why I say that don't be the stick with the books, don't stick with the notes. Sometimes watch the movie and listen the song, because sometimes songs and movies gives a lot of information. I still remember when I was a very tender age, not tender, in fact I was a child. उस वक्त मूवी आई थी रोज़ा, उसमें गाना आया था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक हम एक हैं. क्यों बात कही गई थी? क्योंकि वो जोग्राफिकल एक्सटेंट था. नॉर्थ में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और साउथ में इन द कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट. तो ये हमारा जोग्राफिकल एक्सटेंड हो गया. आप देख सकते हो इन द मैप में. चलो मैं दिखाई देता हूँ. ये देखो जम्मू कश्मीर ऊपर नॉर्थ गया, फिर साउथ भी है, हमारा साउथ वाला हिस्सा है. देखो यहाँ पे साउथ, ये कन्याकुमारी है, ये वेस्ट हो गया. देखो यहाँ पे गुजरात आ रहा है, राइट. और ये हम अरुणाचल प्रदेश हो गया. देखो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक क्रॉस किया है ना. सो इट मीन्स इट कवर्स द होल पार्ट्स, बट दिस इज द ओनली मेन लैंड एरिया, right. Now let us see here that the India's territorial limit extend towards the sea up to the 12 nautical miles, that is about 21.9 kilometer. Look here, I have mentioned the territorial limits. It means it is not the part of the mainland. ये भारत की वो सीमाएं हैं, वो टेरिटोरियल लिमिट है. दोज आर कनेक्टेड और दोज आर लोकेटेड नियर द कोस्ट. यानी भारत की तटीय सीमा, भारत की समुद्री सीमा है ना, तटीय सीमा कहाँ तक है? तो वो है अप टू द 12 nautical miles. But right now if you do the Google and if you see the Indian territorial limits, तो अब आपको शायद 12 पे जगह 14 दिखाएगा, और ये जो है ये इंक्रीज होकर 24 दिखाएगा. बट आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द अगेन NCERT सोर्स ऑफ हायर क्लास. सो उसके आधार पे ये मेंशन कर रहा हूँ, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा. सो टिल नाउ यू कैन जस्ट राइट दैट द मेन लैंड ये है और टेरिटोरियल लिमिट ये है. एंड दिस लास्ट पॉइंट दैट आवर साउदर्न बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड इन बे ऑफ बंगाल. नाउ वुड यू प्लीज टेल मी. अब देखो यहाँ पे आ गया, अगर पूछ दिया कि दैट व्हाट इज द लास्ट व्हाट इज द लास्ट पॉइंट और व्हाट इज द लास्ट एक्सटेंड ऑफ इंडिया, व्हाट शुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड नॉट दिस दैट कन्याकुमारी, राइट. जब भी आपको साउदर्न बाउंड्री की आखिरी छोर पूछा गया, या फिर आप बता सकते हैं दैट हियर आई हैव यूज दिस वर्ड, ये किसका है? 6 डिग्री 45 मिनट्स विद जोग्राफिकल लोकेशन. वुड यू प्लीज टेल मी? अच्छा, डोंट वरी, आई विल सून स्टार्ट द लाइव वीडियो क्लास. लेट दिस लॉकडाउन ओवर, देयर विल चैट एंड देयर विल डिस्कस. बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 6 डिग्री 45 मिनट्स, वो किसकी है, कौन सा पॉइंट है? और ये वो पॉइंट है जो भारत का अंतिम छोर है, द लास्ट साउदर्न टिप पॉइंट. मैंने हिंट दे दिया, चलो यहाँ से भी आपको हिंट मिल ही रहा होगा दैट दिस साउदर्न बाउंड्री. इट मीन्स वो ये पोजीशन साउदर्न बाउंड्री में लोकेट है. वो कौन सा है वो लोकेशन? वो ये है, ये वाला 6 डिग्री 45 मिनट्स. इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास जो एक हमारा साउदर्न टिप पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, राइट. ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, वो हमारा आखिरी छोर है. अगर मेन लैंड की बात की जाए तो सिर्फ यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक होगा, पर पूरा अगर होल लैंड की बात की जाए, होल इंडिया की बात की जाए, तो आपका आखिरी टिप पॉइंट क्या होगा? ये होगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास जो इंदिरा पॉइंट है, वो इसका लोकेशन क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट्स. नाउ लेट मी टेल यू दैट बॉयज often get confused, even the girls also, that these Andaman and Nicobar islands आर द कोरल आइलैंड्स, राइट. भारत में जितने जो ये दिस ये जो सीज हैं, दैट अरेबियन सी, लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल, ओशियन ओशियन, मोस्टली दे आर ऑफ द दे आर ऑफ द कोरल. वहाँ के जितने जो द्वीप आइलैंड्स है, दे आर ऑल आर द कोरल आइलैंड्स, राइट. एंड ये जो हमारा जो कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, दे आर मेड अप ऑफ यू नो इनका माउंटेनियस ओरिजिन रहा है, इनका माउंटेनियस ओरिजिन रहा है. यानी इनका जो इतना पार्ट है ये सबमर्ज्ड है, और सिर्फ ये ऊपर के जो पार्ट है ना, वही उभर के आए हैं जिस पे आइलैंड्स बने हुए हैं,
राइट। तो ये आपका एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए दैट अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज आल्सो अ माउंटेनियस ओरिजिन, यू नो, एंड बाय द माउंटेनियस ओरिजिन दे टेक इन द, by the time past they take in the form of island, and its location is 6 degree 45 minutes. Now this is the last southern tip point. Would you please tell me ki which is the last or which is the last point in the western India? वेस्टर्न इंडिया का आखिरी छोर कौन सा है? जैसे साउथर्न इंडिया का आखिरी छोर इंदिरा पॉइंट है ना, वैसे ही वेस्टर्न इंडिया के भी तो छोर होंगे। वुड यू प्लीज टेल मी नॉर्दर्न इंडिया का आखिरी पॉइंट क्या है? व्हाट इज द लास्ट टिप पॉइंट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया? व्हाट इज द लास्ट टिप पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया? किसी को पता है? कम ऑन। चलो मैं ही बता देता हूँ, राइट। तो याद रखना, जो नॉर्दर्न जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ यू वांट यू कैन यू नो राइट इट एज आई सेड दैट आई विल शेयर ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विच आर रिलेवेंट फॉर द यूपीएससी एंड द पीसीएस, क्योंकि हमको हर डिटेल जानना है। फॉर माई क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो राइट दिस, सो प्लीज प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगर ये सब आप मेंशन करते हो, नो बडी हैज द डेयर टू पुट अ क्रॉस मार्क, राइट। सो ध्यान से सुनिए, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, उसका नाम क्या है मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पे है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उसका नाम है आपका, दिस इज इंडिया, सॉरी इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, राइट, COL, INDIRA, इंदिरा कोल, राइट। वेस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट का नाम है आपका, यानी ये गुजरात के पास है, वेस्टर्न पॉइंट एक जिला है गुजरात के पास है, उसका नाम क्या है आपका वेस्टर्न पॉइंट का? गुहार मोती, GUHAR। मैं अगेन आई सेड GUHARMOTI। this is the northern point, that is Indira Col. Where is the cursor, man? The Indira Col, this is the Guhar Moti, the western point। साउदर्न पॉइंट आपको पता है कन्याकुमारी हो गया लैंड पार्ट में, और नॉर्दर्न में क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। अगर मैं ईस्टर्न की बात करूं तो ईस्टर्न पॉइंट जो है उसका नाम है आपका की भी टू, की, KIBITHU, की बिट्ठू। बिट्टू मत लिख देना, बिट्टू में बिट्टू मेरा नाम है, दिस इज बिट्ठू, की बिट्ठू, KIBITHU। ये कहाँ लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, राइट। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द अरुणाचल प्रदेश हुज नेम इज अंजौ, अंजौ डिस्ट्रिक्ट में है ये की बिट्ठू। तो हमने यहाँ लर्न के देख लिया, जान लिया दैट वी हैव द, you know, we have the western point, that is the the northern point Indira Kool, वेस्टर्न पॉइंट गुहार मोती, गुहार GUHAR, गुहार मोती। साउदर्न पॉइंट तो हमारा है ही, दैट इज द इंदिरा पॉइंट, एंड दिस इज द ईस्टर्न पॉइंट, कौन सा है? की बी टू। सो दिस थिंग्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है कि नहीं? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ लेट मी इरेज दिस ऑल थिंग एंड राइट, तो आ जाएगा। और इसको इरेज करता हूँ क्योंकि आई नीड दिस मैप, सो आई एम जस्ट इरेजिंग ऑल दिस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में क्या करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट, और अच्छा चैप्टर है, सो आई विल टेल यू। ओके, ओके। सो नाउ अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ यू नो मैप। यहाँ देखो, यहाँ पे और क्लियर से आपको शो हो जा रहा है कि ये आपका नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये 6 डिग्री 45 मिनट्स क्या है? हमारा इंदिरा पॉइंट है, राइट। सो अब देखो, यहाँ तक हमने देख चुके थे, यहाँ तक हम यू नो वी हैव सीन that this is the latitudinal extent, India lies in the northern hemisphere, this is the map of India। now यहाँ से देखो, here you can see that ये देखो, ये जो है ना, you know this line, this line, you know this dotted line which passing, right, which passing, ये क्या है? ये इसका भी एक important है, that's why I have, you know, I have used this map, and this is also given in the class NCERT class 9 textbook, right। this is the geographical length। अब आगे स्लाइड में देखते हैं तो इसके बारे में और क्लियर हो जाएगा, we will come to know in the next slide। so where is the cursor? Right, I will change this PPT option here। now the tropic of Cancer, that is 23 degree half,
minutes, or you can write 30 minutes. The Tropic of Cancer, 23 degree 30 minutes north to the divide the country into, sorry, ये to नहीं होगा, divide होगा, divide the country into almost two equal parts, right? To the southeast and southwest of the mainland lie in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea. आपको पता होना चाहिए जो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में क्या है, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड which just divide the India, and it's the Tropic of Cancer 23 degree 30 minutes north, जो क्या करते हैं इंडिया को दो भागों में बांट पड़ता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है इंडिया नॉर्दर्न नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। हियर यू कैन सी, राइट, देखो मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट मैप में, यहाँ से देखो, यहाँ देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड हुआ है एकदम बीच से, राइट, देखो यहाँ से यू कैन सी हियर, राइट, दिस पॉइंट, right, this point. As a result, we have the North India and then we have the Southern India. That's why it is said that it divides the India into two equal parts, Northern India and the Southern India. Okay, now as I said that to the southeast and southwest of the mainland हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, और उस और एक तरफ बे एंड बंगाल है और अरेबियन ओशन है, और नीचे तरफ we have the that one, that is the Indian Ocean. Now the actual mainland measurement from north to south, यानी हमको पता चल गया कि भैया we have the Jammu and Kashmir to Kanyakumari, right, but what are their lands, what are their length, right, उसका length हम यहाँ पे जानते हैं। actual mainland measured from north to south is 3214 kilometer, and from east to west is only 2,933 kilometer. Now these are the mathematical value, these are the distance, these are the length, you have to memorize it, इसका कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिस आर द सम स्टेट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जिस स्टेट से पास करती है, आई विल गिव यू द ट्रिक इन द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो, जिसके जरिए आप एक झटके में याद कर सकते हो। बट इन सब टू मेमोराइज दिस लेंथ, टू मेमोराइज दिस, टू रिमेंबर दिस डिस्टेंस, देयर इज नो ट्रिक, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया का मेजर कितना है 3214, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज 2933 किलोमीटर। देख लो, to north to south north to south 3214, and from west to east 2933 kilometer, right? Okay, now size, let's talk about the size. Now India has a landmass area of 32,87,240 square kilometer, और ऑब्लिक देखो मैंने ऑब्लिक दिया और स्लैश, it is 263 square kilometer. Why I have given this? Because in some book, right, हमारे NCERT में 32,87 दिया है, बट अगर आप हायर स्टडीज, इफ अगर आप यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट हो, इफ यू रीड ओवर देयर, तो वहाँ आपको 240 की जगह लास्ट में 263 स्क्वायर किलोमीटर दिया है। सो बट कीप इन दिस माइंड, एग्जामिनेशन में आपका ये जो है ना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो 32,87,240 या 263 में से दोनों में से कोई एक ही रहेगा, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। बट वी आर द एग्जाम, वी आर द स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू डील और वी हैव टू लर्न द स्मॉल स्मॉल इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर दिया है। दैट इट इज अ लैंड मास, भारत का लैंड मास कितना है 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर और 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और मे बी सिंपल आप बोल सकते हो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बोथ आर राइट, कोई भी आप लिख दो, सब सही है। Now, India accounts total land area about 2.4% of the total geographical area of the world. Sorry, yani within the on in the world, India's land mass or the map of India covers the 2.4%, यानी विश्व का जो मैप है उसमें से भारत की जो कवर करता है वो कितना करता है 2.4%, यानी 2.5% से एक कम 2.4%, याद रहेगा आपको, इसको याद मत रखूंगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिस स्टेट से पास करती है ना, आई विल गिव यू द ट्रिक, एक झटके में याद हो जाना है, डोंट वरी बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, सॉरी स्टूडेंट्स। नाउ इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, वी आर डीलिंग विद द size. India is the seventh largest country. Other sixth country are RCUCBAI. I have written in the short form. This is a kind of a trick to memorize me. मैं ऐसे ही याद रखता हूँ कि कैसे याद रखा जाए, right? How to memorize the other sixth largest country, because according to the size, India is 3.28 million square kilometer or 32 lakh, right? What is this? 32 lakh, some 87,240, right?
32,87,240. Yeah, I am correct. So 32,87,240 square kilometer. India is the seventh largest country. But इसके अगर ये seventh largest country है, then we are having the sixth other largest country. What are those? तो इसको सही तरीके से याद करने का तरीका क्या है? इस जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे इकट्ठे बोलिए, एक झटके में याद हो जाना है. RCUCBAI. हाउ टू से? RCUCBAI. RCUCBAI. आर बोले तो ध्यान से सुनो. आर बोले तो रशिया नंबर 1. सी बोले तो कनाडा नंबर 2. यू बोले तो यूएसए. सी बोले तो चाइना. राइट. बी बोले तो ब्राजील. राइट. दिस इज ए. ए बोले तो आई थिंक अर्जेंटीना. एंड दिस इज आई बोले तो इंडिया. सो यू जस्ट चेक वंस. RCUCBAI, that is the Rajasthan, Russia, Canada, USA, China, Brazil, uh, Argentina, or and India. I am having doubt, so just wait for a moment. Argentina or Africa? Yeah, this happened when you read a lot. So just sorry for this. You just ignore. इसका पूरा नाम होगा RCUCBAI. ध्यान रखना. RCUCBAI. R for Russia, C for Canada, U for USA, C for China, B for Brazil, A for Australia, and I for India. Right. So these are the 6 countries. Again, I am saying RCUCBAI. Russia, China, Russia, Russia, Canada, USA, China. This is Brazil and Australia, India. RCUCBAI. Right. Now the peninsular part of India separating Indian Ocean and बे ऑफ बंगाल. ये तो नोन है. आप मैप देखोगे पता चल जाएगा आपको. ये देखो, ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, यानी पेनिनसुलर पार्ट आपका यहाँ से शुरू होता है. ये जो साउदर्न पार्ट है ना, तो ये क्या करता है हमारा साउदर्न पार्ट? बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को डिवाइड करता है. नीचे इंडियन ओशियन है, ये तो आपको पता है. तो वही मैंने बोला, डेट द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया सेपरेटिंग इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल. नाउ दिस हैज प्रोवाइडेड द कंट्री. This has provided the country with a coastline of 6,100 km in the mainland and 7,517 km in the entire geographical coast of the mainland, plus the island group of Andaman Nicobar Islands in the Bay of Bengal and Lakshadweep Islands in the Arabian Sea. व्हाट आई हैव सेड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यानी भारत की जो तटीय सीमा है, वो जो मैंने बताया था वो टेरिटोरियल सीमा थी, यानी पानी के अंदर समुद्री रास्ते, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, विच आई हैव टोल्ड यू ऑन द फर्स्ट स्लाइड. राइट. दिस वन, वेयर इट इज गॉन? आई थिंक ओवर हियर. दिस वन. राइट. दैट इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट, इट मीन्स भारत की समुद्रिक सीमाएं, तटीय सीमाएं जो पानी के रास्ते हुए गुजरती है, वो कितना कवर करती है? 21.9. पर अगर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, है ना, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया, देन वी हैव द दैट द भारत की कितना, उसका तटीय सीमाएं कितनी है? कोस्ट लाइन 6,100 किलोमीटर इन द मेन लैंड. पर अगर हम लोग जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स होंगे, लक्षद्वीप हो गए, मिनिकॉयस होंगे, राइट, यानी ये सारे जो होगा, अगर इनको काउंट कर ले तो वो 6,100 ना होके, कितना बन जाता है? इट बिकम 7,517. सो कंफ्यूज नहीं होना, वो मैंने बताया है द समुद्री सीमा, द तटीय सीमा जो समुद्र के रास्ते, यानी भारत का. दैट्स व्हाई वी हैव द नेवी, दैट्स व्हाई वी हैव द कोस्ट गार्ड. राइट. तो वो क्यों है? वो है भारत की समुद्री सीमा रक्षा करने के लिए, तो वो उसका डेटा है. बट हियर आई हैव गिवन यू द मेन लैंड along with the coastline, जिसका कितना है? 6,100 किलोमीटर प्लस. बट इफ वी एड द आइलैंड्स विच आर लोकेटेड, दैट इज द अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड अदर स्मॉल आइलैंड्स, तो कितना बन जाता है? इट बिकम 7,517 किलोमीटर. राइट. बिसाइड दिस, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर. यानी this boundary is in respect with whom? With respect with the international countries. With respect with the which? With the respect with the इंटरनेशनल कंट्रीज. यानी जो भारत के जो इंटरनेशनल सीमाएं हैं, यानी भारत की सीमा
भारत का बॉर्डर, यू नो द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मेन लैंड, लैंड बाउंड्री किस किस देश को टच करती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो एरिया है लगभग, मैं आपको बता ही देता हूँ, इधर देखो, लेट्स सी द मैप, यू विल कम टू नो। यानी ये जो ये नो दिस पार्ट, यहाँ से अगर शुरू हो रहा है ये इधर, तो वी हैव द सी, बट यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर राइट, अगेन फ्रॉम दिस, फ्रॉम एंड दिस लोकेशन, दिस लोकेशन, ये कितना लंबा है, ये लगभग यू नो इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, where the cursor has gone, man, it covers the distance of how much, 15,200, right? Could you please tell me that what which are those countries, which are those land, which are those international countries which who are having the land border or the land, you know, territorial limits with the India? कौन सी कंट्री है, ध्यान रखना, वो 7 नहीं है, इट इज नॉट द 7, इट इज 8। people most of the time they confused and they see 8, but the right answer is 7, right आंसर क्या है, 7। हाउ टू मेमोराइज इट, उसका भी ट्रिक्स मैं आपको दे दूंगा लास्ट स्लाइड में, आपको झटके में याद हो जाएगा। तो याद रखना, इन मेन लैंड इट हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200, और ये आपको याद रखना ही है, RCUCBAI, RCUCBAI, रशिया, कनाडा, USA, C for China, B for Brazil, A for Australia, I for India, that's it। Let's go on the next slide. Now, India is bounded by the young old fold mountains in the north like Himalayas, Hindu Kush and Sulaman ranges in the northwest, in by Purvanchal hills in the northeast, and by large expanse of Indian Ocean in the south. अब आप बोलोगे सर हिमालयस तो पूरी कवर किया है, बिल्कुल कवर किया है, दैट्स व्हाई आई सेड दैट द हिमालयस आर द पार्ट ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, राइट, यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। सो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग ओल्ड फाउंटेन माउंटेन्स इन द नॉर्थ। हिंदू कुश का है, हिंदू कुश और ये सुलेमान रेंज आपका आता है, सुलेमान रेंज आता है आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले साइड में। यानी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड से देखें तो वहाँ की ये जो पर्वत है उसने उसको घेर के रखा है। नॉर्थ वेस्ट पूर्वांचल हिल्स आते हैं आपके जो ईस्टर्न हिमालयस है, राइट, वी हैव द नॉर्थ ईस्ट में जो ईस्टर्न हिमालयस है वेयर वी हैव द पूर्वांचल रेंज, तो वहाँ पे इसको पूर्वांचल रेंज ने घेर के रखा है, राइट। एंड बाय द लार्ज एक्सपांस ऑफ इंडियन ओशन इन द साउथ, दैट which is known to you कि आखिरी in the last point we have the Indian Ocean which is surrounding the India and it forms a geographical entity जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यानी ये जो है ना, नॉर्थ से हिमालय से लेकर हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस नॉर्थ वेस्ट में, पूर्वांचल हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड में और नीचे साउथ में, इसके आसपास जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इसको इसके आसपास जो जो कंट्रीज हैं, दोज आर कलेक्टिवली नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसको बोला जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। यानी दीज आर द लोकेशन, इस लोकेशन के बीच जितने जो कंट्री आ गए, दे आर कॉल्ड टू बी, दे आर नोन टू बी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और दे आर नोन एज द भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, तो देखो मैंने आपको डिटेल एक एवरीथिंग इज आई हैव प्रोवाइडेड यू बिकॉज दिस थिंग इज नॉट गिवन द एनसीईआरटी बुक्स बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द ईच एंड स्मॉल इन्फॉर्मेशन। आप लोग इसको लिख देना, देयर इज अ वेरी लेस चांस, लेस क्या, जीरो चांस दैट योर मार्क्स विल बी डिडक्ट। नाउ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशंस अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। यस, ऐसा है क्या? अगर ईस्ट वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ साउथ के मुकाबले छोटा है। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द ईस्ट वेस्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ साउथ is compared to the north south is quite less. Is it so? Let us see the map once again. East west, right? East west how much? 2933. Okay, let's see from the north south. North south how much? 3214. Of course 3214 is a bigger number, so we can see that the north south extension is bigger compared to the east west extension. देखो वो जो आखिरी पॉइंट था किबीटू अरुणाचल में है ना, गुहार मोती वेस्ट में, इंदिरा कॉल नॉर्थ में और साउदर्न में इंदिरा पॉइंट, उसको याद रख लेना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू वांट यू कैन मेंशन व्हाइल आंसरिंग द आंसर्स। Now, east-west extensions appears to be smaller than the north-south extension. Time lag of 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh. Why? Because the prime meridian pass करता है हमारे देश में कहाँ से? 82 degree 30 minutes east और 82 degree half degree passing through Mirzapur in UP, which is taken as the standard time for whole country. Again आपको समझ में नहीं आ रहा होगा टाइम लैग 2 घंटे का देरी क्यों है,
और व्हाट इज प्राइम मेरिडियन है ना, व्हाट स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है. सो आई रिक्वेस्ट यू गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट. इट मीन्स हमारे यहाँ ईस्टर्न में ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटे का डिफरेंस होता है. यानी अगर गुजरात में के मुकाबले अरुणाचल प्रदेश या असम में धुबड़ी में है ना, द सनराइज फर्स्ट एंड आफ्टर द 2 hours और मे बी 1 hour 45 minutes और यू कैन से 2 hours, 2 घंटे के बाद गुजरात में सूर्योदय होता है. बिकॉज ऑफ द डिफरेंट व्हाट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ, फर्स्ट वीडियो देखा होगा बंदे तो पता पक्का बता देगा. बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द लॉन्गी, वेयर इज द कर्सर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, सबका लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग है. और हमारे यहाँ जो प्राइम मेरिडियन पास करती है वो कहाँ से पास करती है, एट व्हाट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट फ्रॉम मिर्ज़ापुर, दैट इज यूपी में है. राइट, देख लो मैप में, देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखो, मैंने बताया था यार, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम. So would you please tell me that which are those states जहाँ से ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पास करता है. ये कौन सा एग्जैक्ट, ये कहाँ पे है, और ये जो ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये दोनों मिल रहे हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस. चलो आई विल टेल यू. So you know these are the points, or you can say these are the meridian by which its location is 82 degree 30 minutes. It's देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. You know it passed from the यूपी में, यूपी इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है ना, और इसी वजह से उसको स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश. कितने कितने घंटे की, 2 hours की. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सी द फर्स्ट वीडियो, यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडिया एंड द वर्ल्ड. इंडिया एंड द वर्ल्ड. नाउ इंडिया इज इन द साउथ ऑफ एशिया. ये तो आपको 100% पता है. साउथ ऑफ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया नहीं है. डोंट मेंशन साउथ ईस्ट. इट इज, इंडिया इज इन द साउथ ऑफ एशिया, राइट. एंड इट हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. It has the longest coastline in the Indian Ocean, which justifies the naming of ocean after India. यानी इसका जो कोस्ट लाइन है, इसका जो तटीय इलाका है, वो इंडियन ओशियन से जो थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है उसके बहुत लंबा है. और उसी वजह से इंडियन ओशियन का नाम भी हमारे देश की वजह से पड़ा, क्योंकि वो घिरे हुए था और बहुत लंबा था. लेकिन इंडिया और वर्ल्ड का रिलेशन कैसा है, वो साउथ में है, सेंट्रल लोकेशन में है, ईस्ट और वेस्ट के एकदम सेंट्रल में है. और ये जो मैप मैंने बताया है, why I have put this map, इसका रीजन है that in the ancient period, whatever the entries would have take place, वो कहाँ से पड़ा है, वो पड़ा है फ्रॉम द हिंदू कुश. इट मीन्स मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स, मोस्ट ऑफ द द you can say the the kings, the emperors who attacks on the Indias, they had just crossed. Even the Aryans, when they have entered India, they crossed the Hindu Kush mountain. वो हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करके आते थे. यानी ये जो साउथ ऑफ एशिया था, वो ईस्ट वेस्ट एशिया का जो लोकेशन है हमारे इंडिया का, वो वेस्टर्न माउंटेन से हिंदू कुश माउंटेन्स होके आते थे, इंडिया में एंटर करते थे. और उनका जो मोस्टली जो काम धाम था, जो ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ, चाहे वो बिजनेस करना हो, राइट, या फिर कुछ सेल करना हो, वो मोस्टली उन्होंने कहाँ किया, वेस्टर्न में. इट मीन्स वो इंडिया में आए हिंदू कुश माउंटेन से, राइट, क्रॉस करके, एंड दे हैव मूव टुवर्ड्स द वेस्टर्न इंडिया. इसलिए मैंने आपको ये मैप बनाया है, इंडो आर्यन माइग्रेशन, इसलिए आपको याद रहता कि, राइट. अब देख लो, फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट, वही मैंने लिखा है, फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट मूवमेंट वाज लार्जली टुक प्लेस. The roots have contributed in exchange of ideas of Ramayana, Panchatantra, the Indian numerals, decimal system, Greek sculpture, and building styles from Western Asia also influenced the Indian culture. What I have said, right? From the western part से वो लोग आए, western हिंदू कुश mountain में आए, western part में गए, and largely and it flourished the trade and commerce, and also they have exchanged the ideas of the Panchatantra, the Ramayana, the Indian numeral system, the counting system, चाहे वो decimals आपको पता होगा, right? The decimals, the point, the zero, all were invented in the India. और इस तरीके से इंडिया को बहुत वेस्टर्न
फ्रॉम वेस्टर्न एशिया के जो कल्चर था वो भी इंडिया को इन्फ्लुएंस किया. आई होप अप टू दिस यू हैव अंडरस्टूड द इंडिया साइज एंड लोकेशन, राइट? जो द इट्स कोस्ट लाइन एरिया, टेरिटोरियल एरिया, the prime meridian, 82 degree 30 minute east north, everything you have understood. And you have understood that how the other countries influenced the India. When they crossed the Hindu Kush mountain, they have entered in the west, and this is how the things get exchanged between them. Now, as I promised, here I'm giving you some trick to remember. नाउ ट्रिक्स टू रिमेंबर, राइट? ट्रिक्स टू रिमेंबर जो मैंने पूछा था कि भारत की कितनी जो नेबरिंग कंट्रीज, भारत की कौन कौन सी जो इंटरनेशनल, विच आर दोज इंटरनेशनल कंट्री विच इज सराउंडिंग इंडिया, जो भारत को घिरे हुए, या फिर भारत की सीमा किन किस देश से लगती है. तो इसका ट्रिक है, इस मे को देखो, मैंने आई हैव रिटन एम ई, मे इन द स्मॉल लेटर. इट मीन्स इसका यूज यहाँ नहीं होना है. ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टूड, बचपन में एम बी है, बचपन में एम बी है, बचपन में एम बी है. सो आपको पता चल जाएगा. And the motive is to give you, and the motive behind to give this trick, because in the next topic we will only discuss the relation between the India and neighboring countries, or the location of India with the neighboring countries. इसलिए अगर आपको अभी से ये याद रहेगा तो बहुत आसानी होगी. जैसे मैंने बताया था that India has the longest boundary 15,200 kilometer with the different countries, with the different countries which is surrounding the India. वो कौन से हैं? वो है बचपन में MBA. बचपन में MBA. मे को याद नहीं रखना, ये याद रखना है. बचपन में कैसे देखो, BA फॉर बांग्लादेश, CH फॉर चाइना, PA फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल. ये बचपन का कहानी खत्म, बचपन ओवर. अब देखो, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान. टोटल 8 हैं. 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 होंगे. 2 3 4 5 6 7, हाँ. So these are the 7 countries. So these are the 7 land countries, or you can say these are the 7 countries which is surrounding the land boundary of India. But if I say name the countries which is surrounding the water parts, or which is surrounding the territorial uh, regions of India, or which is surrounding the coastal regions of India, दो country है छोटे छोटे, श्रीलंका और एक मॉरिशियस नहीं बाबू, मालदीव्स. श्रीलंका एंड मालदीव्स. लैंड में ये 7, और उधर 2, श्रीलंका एंड मालदीव्स. अंडरस्टूड? अब एक आखिरी ट्रिक. नाउ ट्रिक टू रिमेंबर पासिंग, ट्रिक टू रिमेंबर स्टेट्स पासिंग फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास करता है, कहाँ कहाँ से पास करता है, कहाँ कहाँ से पास करता है, वो कितने कंट्री स्टेट से? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी दीज आर द total how many countries? These are 8, not countries man, these are 8 states. Sorry, आजकल 2 दिन से प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है. So wait, I will just hold a moment. तो आप ये चीज़ अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, राइट? और ट्रिक्स को याद रखना, विच फ्रॉम वेयर इज इट, from where the topic of cancer is passing. The trick is Miras JCB at GMT. At का यहाँ कोई यूज नहीं है, यूज है Miras JCB at GMT. Miras, MI for Mizoram, RA for Rajasthan, J for Jharkhand, right? Yeah, C for Chhattisgarh, B for Bengal, that is West Bengal, G for Gujarat, M for Madhya Pradesh, and T for Tripura. That is the Miras JCB at GMT. इसके अलावा there is one more trick if you write, और जो एंड आई एम 100% श्योर दैट ये ट्रिक से ज़्यादा आपको ये ट्रिक पसंद आएगा. इफ यू कैन रिमेंबर दिस ट्रिक, मिराज जेसीबी एट जीएमटी, यू कैन इजिली रिमेंबर द स्टेट्स नेम: मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा. इसके अलावा देयर इज वन मोर ट्रिक टू रिमेंबर द स्टेट्स विच इज पासिंग फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आई डोंट नो द हिंदी टाइपिंग, दैट्स व्हाई आई हैडंट रिटन हियर, आई हैवंट रिटन हियर. वो है आपका हिंदी में एक ट्रिक है, मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. मित्र पर गमछा झार. मैंने यहाँ लिखा मित्र पर गमछा झार. ये ट्रिक है टॉपिक ऑफ कैंसर याद करने के लिए. मित्र पर गमछा झार. मित्र, अब यहाँ से म लो, मित्र लो. मी फॉर मिजोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, पर फॉर पश्चिम बंगाल, आर फॉर राजस्थान, राइट? ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छ
छ फॉर छत्तीसगढ़, और ये क्या है, छ फॉर छत्तीसगढ़, और झार, झार फॉर झारखंड। सो दो दो ट्रिक दे दिए मैंने आपको, कोई एक याद रख लो, मित्र पर गमछा झार या मीराज जेसीबी एट GMT, इट्स अप टू यू. So here today I am just binding up the situation because the power has also gone, and after this only one topic is left, that the India relations with the neighboring countries, जिसका ट्रिक भी मैंने आपको दे दिया है, बचपन में MBA, उसको भी याद रख लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस with the India's location with the neighboring countries, and we will finish this chapter and we'll start from maybe we'll start the polity or that economics. So thank you so much, boys and girls. Have a good day and have a wonderful day ahead. Stay safe and stay happy, and keep loving, keep watching, and keep learning. Thank you so much. अपना ख्याल रखना, और अपने ख्यालों में मुझे इस क्लास यूथ एंड ट्रूथ क्लासेस को रखना. तस्वीर दानिया, टाटा, बाय बाय.